Viewers, today the remarkable job opportunity for the young job seekers. The NILIT and Denaton Government College is collaborating and hosting one-day job fair Yuva Yojgar Munch here at the Denaton Government College Itanagar Auditorium, and this is under the Ministry of Electronic and IT. So each candidate can apply for the 3 different companies. This is a great opportunity. Don't miss out and take this the next step for your career. So stay tuned with us to know more in details. Like national this problem would be impossible. What kind of हमसे भी काम करवाइएगा ठीक है So ma'am, what is your message to the student and the job seekers attending this event? How should they make the most of this opportunity available here? So to the students, the candidates, the job seekers, my message to them is that today is their day to shine. This is an opportunity for them. Everybody has worked hard to give them this platform and they should fully utilize it, engage with all the job recruiters here, and I would say that not just based on their educational qualification, they should also show their skills, their unique ideas and talents, and get the job. Regardless of what the outcome is today, they should continue working on themselves, adapting and learning new things, and definitely their hard work will pay off. So all the best to them. One more question is like, what are the key challenges that you think that like your young job seekers are facing today, and how do like even like this one day this NILIT can help to the like young generations? I think the challenge, not just our job seekers, but overall the landscape in Arunachal we face are both ways. One from there's no lack of trying from the government or from other supporters from private organizations or from educational organizations, institutions to give support to our job seekers. However, there is more effort to be put in spreading awareness and getting as good recruiters as we can. The challenge that I see from the job seeker side is that they have to be more enthusiastic, they have to be more broad-minded, they have to go beyond the mentality of just being in the comfort of working in their home space. They should explore more opportunities and broaden their life experience. So other than that, they should constantly keep working on their skills. That is one thing, that is must. They have to keep working on the skills, keep getting better, because the job market is very competitive and ever evolving. सर, तो आज की जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. आज का ये कार्यक्रम नेलिट और देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर ने कोलैबोरेशन में साथ मिलकर इसका आयोजन किया. ये सेकंड जॉब फेयर युवा रोजगार मंच पहला हमारे ही ऑडिटोरियम में पिछले साल हुआ था 2023 में. अभी ये दूसरा हो रहा है, सेकंड जॉब फेयर है. तो इसके आयोजन का मुख्य लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक जो बेरोजगार युवा हैं अरुणाचल प्रदेश के वो आएँ और 20 से अधिक रिक्रूटिंग एजेंसीज़, कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आई है जॉब देने के लिए, जॉब प्रोवाइडर्स. तो जितने भी जॉब सीकर्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, वो आएँ और इंटरव्यू दें,
हर व्यक्ति, हर एवरीबडी कैन अपीयर 3 मैक्सिमम 3 इंटरव्यूज़, और उनका अगर सिलेक्शन होता है, स्किल्स होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू हैव कैपेबिलिटी, इफ़ यू हैव स्किल, तो नेचुरली आपको वो लोग सेलेक्ट करेंगे, जॉब मिलेगा, देंगे। बेरोजगारी की समस्या बहुत है युवाओं में, इसलिए हमने और डायरेक्टर नेलिट मिलकर, हम लोगों ने, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी हैं, तो ये सब मिलकर हम लोग पिछले साल से कर रहे हैं, और ये एनुअल कैलेंडर इवेंट रहेगा, क्योंकि सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र, ये हमारा लक्ष्य है उसका पाना। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि एक बैनर के नीचे इंटरव्यू दीजिए, और अगर आप में स्किल है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और आपका रिक्रूटमेंट होगा, प्लेसमेंट होगा। अगर स्किल नहीं है तो अपना स्किल आप एक्वायर करें, डेवलप करें, ये हर साल होगा। और जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा, जिनका नहीं होता है उनको डिस्करेज नहीं होना है, दे शुड नॉट, हताश नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। उनको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम में क्या कमी थी कि किसी इंडस्ट्री वाले ने, किसी रिक्रूटर ने नहीं सेलेक्ट किया, और वो अपना स्किल, अगर अपनी कौशल को बढ़ाएंगे और वो एक्वायर करेंगे स्किल, तो फिर नेक्स्ट ईयर उनको मिलेगा मौका और उनका सिलेक्शन होगा। आज ऐसे कंपनी भी कितना पार्टिसिपेंट्स आया है, और साथ ही साथ कितना अनएम्प्लॉय जो जॉब सीख करने के लिए यहाँ पे आया है? एक्चुअली एडवर्टीज़मेंट और पब्लिसिटी में थोड़ी देर हुई। कल बहुत जगह ये हुआ, रात में 8-9 बजे 10 बजे, बहुत ज़्यादा अगर पहले से हम लोग करेंगे, 15 दिन पहले से या 1 महीने पहले से, तो हमारी बातें और इस इवेंट के बारे में जागरूकता होगी, और इसका अवेयरनेस अगर हम पहले से ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। पिछले साल तो 400 से अधिक अनएम्प्लॉयड यूथ्स आए थे, पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से 70 का सिलेक्शन भी हुआ था। 25 कंपनियां, इंडस्ट्रीज़ और रिक्रूटर्स आए थे। इस बार अभी मॉर्निंग में बहुत अधिक तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत बच्चे आजकल देर से जगते हैं और उनको टाइम दिया गया है 9:30 से 4:30 का, तो कई सोच रहे होंगे कि आराम से जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे, 3 बजे जाएंगे। तो अभी तो एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं दिया जा सकता, लेकिन शाम तक 4:30 तक आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा कि कितने आए हैं और कितने का सिलेक्शन हुआ, कितने का प्लेसमेंट हुआ। कि पिछले साल मात्र हमारे कॉलेज में ही हुआ था और ओनली ऑफलाइन हुआ था, फिजिकल इंटरव्यूज़ हुए थे। इस साल टू फैसिलिटेट यूथ्स और उनको जर्नी एक्सर्शन, जर्नी एक्सपेंडिचर से बचाने के लिए हम लोगों ने 2 और जगह ऑनलाइन इंटरव्यू की व्यवस्था की है, जो तेजू में और पासीघाट में। तो ये 2 जगह ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है, तो बहुत कैंडिडेट्स वर्चुअल मोड में भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इस साल टर्नअप अभी कम है, आने वाले टाइम में दिन में बढ़ेगा। हाँ, ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। वो प्लेटफॉर्म में जो जॉब सीकर लोग हैं, जॉब सीकर मतलब अनएम्प्लॉय यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने वाला मतलब जॉब प्रोवाइडर के साथ मिल के ऐसा इजीली 1 डे में वो लोग मिल के इंटरव्यू भी दे देगा, और जॉब प्रोवाइडर लोग को भी क्या क्या स्किल चाहिए मतलब जल्दी से मौका देने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली अगर किसी जॉब प्रोवाइडर ने किसी रिक्रूट करना है तब तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट मतलब सोशल मीडिया में भी करेगा और टीवी चैनल में करेगा, न्यूज़पेपर में करेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग काम है एंड टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, पैसा भी खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, ऑलरेडी डिफाइन किया है ये स्किल होना चाहिए और जॉब सीकर लोग के लिए, और जॉब प्रोवाइडर लोग को भी बता दिया ऐसे ऐसा स्किल पर्सन होगा, आप आके रिक्रूट कर लीजिए। इसलिए मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इजीली जॉब प्रोवाइडर लोग को भी स्किल वाला मिलेगा और मिलने के लिए, और जॉब सीकर लोग को भी तुरंत जल्दी से जॉब मिलने के लिए। तो सर ये आप लोग का अभी कैलेंडर इवेंट बनने वाला है, तो ये एवरी ईयर होगा? एवरी ईयर होगा। एक्चुअली नीलिट ये हमारा पान इंडिया एग्जीबिशन है, हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है। We are under Ministry of Electronics IT, Government of India. We have 47 centers across the
कंट्री। हमारा मैंडेट क्या है? स्किल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT एंड द एलाइड फील्ड्स, एंड नॉट ओनली स्किलिंग। आजकल क्या है, ये भी ज़रूरी है स्टूडेंट लोगों को स्किलिंग करने के बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस करना। तो हमने सारा स्टूडेंट तो प्लेसमेंट प्रोवाइड तो कर नहीं सकेगा, इसलिए हमने हमारा एक मैंडेट में एक नया डाल दिया, दैट इज़ एवरी ईयर विल ऑर्गेनाइज सच इवेंट सो दैट at least some student could get job easily.